Hello friends, welcome to the module number 10. Today we are going to cover a very important area, very important topic under research methodology, that is sampling and different types of sampling. So it is not possible to cover all type of sampling in one module. So one by one I will give modules in my channel. So today we will cover what is sampling, what are the important terminologies related to sampling, what are the important steps in sample survey, what are the different types of errors, and what are the different types of sampling, and then we will today look into simple random sampling and different types of simple random sampling. So this your module is not only useful for extension education student, but it is very useful for all the researchers, because all researchers has to take sample to draw valid conclusions through their research. So this module is very useful from across all discipline, not only in agriculture sciences but in all research areas. So today we are going to have a very important discussion, so please follow. I will show you the notes which I have made during my MSc and PhD. I have snapshot those notes and they will come in between, and I will explain each concept from these notes. So let's begin this important module. So these are the important books of research methodology. I have already explained you can take them and you can read from these books. These are good books. These are already uploaded modules in my YouTube channel. You can see basic concept of extension has been covered, communication unit has been covered, then we are doing research methodology. In research methodology we have done 5 parts, 5 important sub part of research methodology. So this is the 6th one, in which we are giving is looking for sampling and different types of sampling. So if I use Hindi language, I will convert it instantly into English so that my friends who have joined from South India can also understand what I am talking of. So let's begin today. These are the topics you can see on screen which we have covered till now. So these are the topic. All the modules are uploaded in my channel. All the links are in description box. So if you are preparing for SRF, JRF or PhD entrance or any interview, so you can refer to these modules. These are very useful. So let's begin. So let us start with a sample. So when we say sampling, let us first of all, let us be clear about different terminology. The first term is sample. So let's see what is sample. A sample is any number of units, object or person selected to represent the population according to some rule or plan. This is the definition of sample. It is the number of units which represent the whole population. So you all know why we do sampling. We do sampling because we cannot study all the population or all units of the population. So we are not able to study every unit of the population. So what we do, we take a fraction of the population or number of units from the population and we study those units and we call it as a sample, and based on that sample we draw conclusion about the population or about the whole population which we have considered. So sample is the any number of units drawn from the population which represent the population. This is very important. This line is very important. Represent the whole population. This is very important, but it has to be done according to some rule or plan. So now let's see what is sampling. So simple, if you have understood sample, so sampling is a method of selecting a fraction of population in such a way that it represents the whole population. So sample drawing sample from the population, the process is sampling. It is done in such a way that the number of units which have been selected represent the whole population. यानी पूरी जनसंख्या को represent करना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपने जो sample draw किए हैं. And the units which you have drawn are known as sample and the process is known as sampling. So now you have heard census. भारत सरकार का census होता है. Indian government do census. So census is a process where you take all members into consideration, while sampling takes only sample. So in census you count, you take data from each and every unit of the population, so it is known as census. While in sampling you are not taking data from each units of the population, you are taking data from a fraction of population which represent your whole population. Now important term, population frame. What is population frame? Population frame is the list of all the units of the population. So all the units of the population are known to you. You have the list. It is known as population frame. For example, in a village, in a particular village, suppose 250 farmers are there in a particular village. I am drawing a sample of 50 farmers out of these 250 farmers. But I have a list of these farmers. So the list of these farmers is known as population frame.
किसके पास होती है? जनरली यू हैव अ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, tehsil, and tehsildar is there, so the data with the state government is there. So all the data, all the list of the whole population is known as population frame. It provides a basis for the selection and identification of units in a sample. Example, list of villages, list of farmers of the whole population under study. So from a simple example you can understand, in a village 250 total farmers are there. So if you have the list of 250 farmers, it is population frame. Now population group of units defined according to aims of the survey. Yani if I am studying on a farmers of a particular village, so if that village have 250 farmers, so my population is consisting of 250 farmers. Now I do not have resources to take data from each and every farmer, 250 farmers, so I will draw a sample. So the part selected from the population to draw inferences about a population is known as sample. So 250 किसान थे, उनका लिस्ट मेरे पास था, उस लिस्ट को मैंने क्या कहा? पॉपुलेशन फ्रेम. उन 250 फार्मर्स से मैंने 50 फार्मर्स सेलेक्ट कर दिए इस तरह से कि 50 फार्मर 250 फार्मर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. तो ये 50 फार्मर्स क्या हो गए? मेरे सैंपल. और 250 फार्मर क्या हो गए? मेरी population. So this is very important to understand. Now census method is the complete enumeration when 250 किसानों का हर एक किसान का डेटा मैं लूंगा, तो क्या कहूंगा मैं इसको? census method कहूंगा. So it consists the collection of data from each unit of the population. When government do census, it means they have taken data from each and every citizen of our country. इसीलिए सेंसस बहुत कॉस्टली होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज इसको करना बहुत कठिन होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सेंसस बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी, दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, दैट मच ऑफ टाइम. सो वी डू sampling, and on the basis of sampling we draw conclusions and inferences about the population. That's why this science of sampling has been developed. So census, you have understand, this process is used in census of human population, livestock census, agricultural census, industrial establishment census, etc. The effort, money, time required for carried out census is very large. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही सेंसस कर सकता है. आप रिसर्चर्स हैं, वी ऑल आर रिसर्चर्स, वी कैन नॉट गो फॉर सेंसस मेथड, वी गो फॉर सैम्पलिंग मेथड. नाउ लेट्स सी, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, पैरामीटर एंड एस्टिमेटर. देखो यहाँ पर मैंने अपने कुछ नोट्स में लिखा है, फर्दर सेंसस इज नॉट प्रैक्टिकल इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन. एग्जांपल, सेम ड्रग टू होल पॉपुलेशन. यस, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है सेम ड्रग, इफ यू आर चेकिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द पॉपुलेशन. सो इफ यू गो फॉर सेंसस मेथड, तो भारत के 140 करोड़ लोगों को वो सेम दवाई थोड़ा ना खिलाओगे आप चेकिंग के लिए, राइट? सो यू विल ड्रॉ अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एज, डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ स्टेटस. यू एक्सपेरिमेंट दैट ड्रग ऑन देम, राइट? टेक अप portion of the whole population and do research on them, and based on that conclusion you will draw conclusion for the whole population. So ये बहुत important है sample draw करना. ऐसे ही आपने देखा होगा in a bulb industry बहुत सारे बल्ब बनते हैं. So if you are checking a bulb, so हर बल्ब को जला के थोड़ा ना दिखोगे, आप randomly select कर लेते हो कुछ बल्ब्स को हर लॉट से, इस तरह से कि each and every sample represent your population and you draw conclusion on the basis of that experiment. So this is very important, and this is the difference between census and sampling. So there are two important terms, parameter and estimator. So parameter is the function of population values. It means parameter is the function of population values, यानी जो जनसंख्या हमारी टोटल है, यानी एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं 200 फार्मर्स आर इन अ विलेज एंड 50 फार्मर्स आई हैव ड्रॉन एज अ सैंपल. सो पैरामीटर क्या होगा मेरा? 250 फार्मर्स की बात करेगा. इट मींस इट इज पॉपुलेशन मीन, इट इज वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. सो पैरामीटर जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहा हूं जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे पॉपुलेशन को. इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन. And when I say estimator, it is the function of sample values. When I say estimator, it means I am talking of a function which represents my sample. So sample mean, sample variance, sample correlation coefficient. So when I say estimator, it means I am talking about a sample. When I say parameter, it means I am talking about a population. Okay, so the beauty of these modules is I have scanned my notes, so you can pause this video and you can make your notes for sampling. ठीक है. And these are the notes from my class notes taught by very good teachers of Pantnagar universities, and also from the books Kallinger and sampling method Kothari book. So 3 or 4 books and teachers class notes are important, right? So this is very important. So a statistic is a characteristic
ऑफ द सैंपल, पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, हमने एस्टिमेटर भी कहा। तो एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक क्या है, सैंपल की बात करता है, पैरामीटर किसकी बात करता है, पॉपुलेशन की बात करता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि इनके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी मीन ऑफ पॉपुलेशन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ऑफ सैंपल को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन इज नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें टोटल लिस्ट ऑफ द यूनिट्स है, ठीक है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी सैंपल्ड इज नोन एज सैंपलिंग यूनिट। 250 फार्मर्स का लिस्ट क्या कहलाएगा, सैंपलिंग फ्रेम, एंड 50 फार्मर्स आर ड्रॉन फ्रॉम 250 फार्मर, दे आर नोन एज सैंपलिंग यूनिट, राइट। सो नाउ सैंपल इंक्वायरी कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप देख लेते हैं, बुक्स में था, बहुत अच्छा है, समझ लेंगे प्रोसेस को। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेयर सैंपलिंग इज इन्वॉल्व एंड हाउ वी डू सैंपल inquiry. The first method of doing sample inquiry is by conducting experiment. We conduct a sampling experiment which is suitably designed and partially or fully controlled by experiment. So when you do an experiment, you have certain samples and you do experiment. So this is one way of generating data on the basis of sample. But in social science especially, we do sample survey. This is very important for us, for social scientists, because in social science we do not do as much as classical research or that what we do lab work, but we do sample survey with farmers and our target population. So the individuals under study occur in nature and cannot be subjected to any experimental control. So in a sample survey, our aim is to make decision with maximum precision at a given level of cost. ठीक है, so we cannot go from each and every farmer of our country, so we select a certain farmers who are representing that population and we conduct our sample survey on it, and it has three important steps. The first is planning stage, second is execution stage, third one is analysis and reporting stage. The first one is the planning stage. The first step is, first we define the problem, what is our problem, what is our objective, and we decide what type of information is really needed. This is very important. When you do your MSc research, PhD research, first of all you define your problem, then what type of information you want to gather from the population, that thing you have to define. Third, to define the population to be studied, you define which will be your study locale and which will be your population. For example, if I am working on a farmers or who have adopted a particular rice variety which has been released for example Delhi NCR region, so my population will be the farmers of Delhi NCR region. From that population I will draw certain sample to draw my conclusion. So I have to define my population also. I have to keep the survey as small as possible. For this, one should make the thorough investigation to see how much information is needed and what is already available. So I will not keep survey too much large, and in MSc and PhD you need, in MSc hardly 1 year is there for doing survey research. You have, in that 1 year you have to collect the data, analyze the data and write your thesis also. So hardly 3 or 4 months are available for survey. That's why it should be very focused and robust activity. You have to decide what type of survey is to be provided information that is desired, reasonable cost such as personal interview method, questionnaire method. If your audience is literate, अगर पढ़ी लिखी जनता है आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है, तो आप मेल्ड क्वेश्चनर भी कर सकते हैं। अगर पढ़ी लिखी नहीं है, फार्मर्स है, तो इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनर. Again and again it comes in exam. Interview schedule, when a researcher individually goes to the population or target audience and collect data, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल. व्हेन वी मेल अवर क्वेश्चनर एंड वी कलेक्ट डेटा बट बाय नॉट गोइंग फिजिकली, इट इज क्वेश्चनर मेथड. To prepare the questionnaire or schedule, to draw instruction of the team workers, field workers, to pre-test the questionnaire, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 5% of the total sample जो आप लेते हैं टोटल पॉपुलेशन का, उसका आप प्री टेस्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चनर को इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, पायलट सर्वे से. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये करना चाहिए. टू रिवाइज द क्वेश्चनर इफ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द प्री टेस्टिंग. और प्री टेस्टिंग में जो आपने सैंपल इन्वॉल्व किए उसको मेन सैंपलिंग में आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं. This is very important. Then the second is execution stage. Execution stage where you actually conduct data with the help of your team or yourself. Right. The third one is analysis and reporting stage. Here you scrutinize, tabulate, analyze the data collected. You enter the data into Excel sheet for analysis. You compute the sampling errors. You interpret the result and draw conclusion based on the analysis of the R software, SPSS software, SAS software. जिससे भी आप analysis कर रहे हैं उसके basis में आप draw conclusion करेंगे and necessary recommendation बनाएंगे and data को future के लिए store कर देंगे. ये these are the important steps which we say in our
सैंपल सर्वे. द फर्स्ट वन इज प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, एनालिसिस स्टेज. ठीक है, ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए. यू कैन मेक नोट्स. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, व्हाई वी डू सैम्पलिंग, and why you all study sampling course in your PhD and in your MSc. What are the benefits of sampling? The first sampling benefit is reduction of the cost, since we conduct the survey for smaller unit. In comparison to census, you have to go each and every individual, and can you imagine 140 crore population of our country, and if you are conducting a survey and you need a national level status of any topic, can you go door to door of 140 crore people? It's just impossible. It is possible only to the greater machinery like government of India when they do census. For an individual researcher is impossible. So we go for sampling. That's why our study can be completed in time and in low involvement of the cost. Second, it will save our time, it will save our manpower, इट विल बी मोर एक्यूरेट ड्यू टू गुड सुपरविजन ऑफ स्मॉल यूनिट. आप इतने बड़े डेटा को संभाल ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े लार्जर एरिया पे सर्वे करेंगे. इफ योर सर्वे इज फोकस्ड टू द पॉइंट ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस, सो इट विल बी मोर एक्यूरेट एंड सुपरविजन कैन बी डन मोर इफेक्टिवली. इट हैज मोर स्कोप बिकॉज वी यूज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड हाईली ट्रेन्ड पर्सन्स आर देयर टू कलेक्ट सैंपल. एंड नाउ डेज वी हैव इक्विपमेंट ऑल्सो. लैपटॉप आ गए हैं, palm tops आ गए हैं, डेटा इन्यूमरेटर्स होते हैं. दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ दैट palm tops डिजाइंड स्पेशली फॉर सर्वे. आप कभी शोरूम में जाते हैं, वो भी आपका सैंपल लेते हैं, सर्वे लेते हैं, आप कितना अच्छा उनको रेटिंग देते हैं. दिस ऑल स्टाइल ऑफ सर्वे हैज कम ऑनलाइन एंड सॉफ्टवेयर बिल्डेड, सो इट्स ईजी टू डू. Cost saving, time saving, manpower saving and more accuracy. These are the benefits of sampling. Generally क्वेश्चन ARS में भी कभी कभी 5 मार्क्स का आता है और ये आपको पता होना चाहिए. और सैम्पलिंग का कोर्स आप PhD और MSc में पढ़ रहे हैं, सो दिट कैन कम टू योर एग्जाम्स. ठीक है, ये दूसरे टीचर का और दूसरे बुक से है. देखिए, चीपर, फील्ड वर्क एनालिसिस ऑफ डेटा इज इजी, प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर कैन बी डन, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड हाई एक्यूरेसी इज इन्वॉल्व. ठीक है, हर तरह से आसानी रहेगी. हाउएवर इन सम सेंसस यू हैव टू डू फॉर कंप्लीट इन्यूमरेशन. एंड डीमेरिट क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स विल बी मोर. अभी हम देखेंगे व्हाट आर सैम्पलिंग एरर्स एंड व्हाट आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स. लिमिटेड इंक्वायरी एंड टाइम एंड कॉस्ट आर ह्यूज, वेरी हाई, एंड इंक्वायरी टाइम इज वेरी लिमिटेड if you are going for census method. So these are the difference between census method, sampling method and benefits of sampling. So now let us look what are the different types of errors. ठीक है, there are two type of errors. The first one is non-sampling error और procedural error जिसको हम कहते हैं. Second is sampling error. As its name suggests, non-sampling error कौन सी error होंगी, जिनमें sampling से लेना देना नहीं होगा, और सैम्पलिंग एरर वो एरर होंगी जिनमें सैम्पलिंग इन्वॉल्व होगी. अभी देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट देखते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. सो नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर द एरर्स विच मेनली अराइज एट द स्टेज ऑफ असरटेनमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कॉमन टू बोथ सेंसस एज वेल एज सैम्पलिंग मेथड. ठीक है, सो व्हेन यू हैव कलेक्टेड डेटा, यानी सैम्पलिंग आपने कर ली, यू हैव कलेक्टेड डेटा थ्रू सैम्पलिंग. नाउ द सैम्पलिंग प्रोसेस इज ओवर. नाउ यू आर enumerating the data, entering into Excel sheet, you are processing the data. So all the errors which you are doing while entering the data, processing the data, not in that sampling method, in processing the data, in involvement of arrangement of data, processing of data, enumeration of data, these are non-sampling errors. So these are 2 or 3 types. The first one is response error. Response error is the error arising due to the biased response furnished by respondent in form of wrong answer. When you are collecting data, है ना, तो आपने रिस्पॉन्स आपको जो रिस्पोंडेंट ने दिया, फॉर एग्जाम्पल वो बायस हो गया, उन्होंने कुछ गलत जवाब दिया, बायस तरीके से दिया. ठीक है, सो इट विल अफेक्ट योर it will create error in your sampling data. So example is income, age, production, input etc. में ये response error आ सकता है, right? Then non-response error. If the respondent is not available or he or she refuses to give information. ठीक है, if the आपने जिनको अपने sample frame में involve किया वो available नहीं है और आपको data नहीं दे रहे, तो आपका data size सफ़र करेगा, एरर आएगी. सो वी कैन रिड्यूस द सैंपल साइज एक्सक्लूडिंग दैट पर्सन. सो सॉल्यूशन क्या है, अपना सैंपल साइज आप घटा लीजिए, उस पर्सन को एक्सक्लूड कर दीजिए. ठीक है, देन इंटरव्यूअल एरर. सजेशंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर मे इन्फ्लुएंस द आंसर गिवन बाय रिस्पोंडेंट और एनी इंटरव्यूअर मे रॉन्गली इंटरप्रेट द सम क्वेश्चंस और आंसर्स. सो सपोज इफ यू आर आस्किंग गैदरिंग डेटा, सो इफ यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आप कुछ और समझ रहे हैं और डेटा देने वाला कुछ और समझ रहा है, तो वो हो सकता है आपको दूसरा परसेप्शन दे दे. सो यू आर रिकॉर्डिंग इट इन अ रॉन्ग मैनर. सो
if you have explaining a question, so they can become biased. So these are known as intervener error. Observational errors arises due to recording of wrong data by interviewer wrongly. Example, in case of estimation, the investigator may underestimate or overestimate any parameter of the population. So if your observation is wrong or recording is wrong, डेटा का गलत तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो ऑब्जर्वेशनल एरर्स हो सकते हैं. तो हमने कितने प्रकार के पढ़े? नॉन सैम्पलिंग एरर्स, फर्स्ट इज रिस्पॉन्स एरर, non-response error, interviewer error and observational errors. The second comes the sampling errors. Sampling errors क्या है? The information provided by a sample is subjected to kind of errors called as sampling errors. These errors are found only in sampling only. Sample survey के दौरान आपका कुछ गड़बड़ हो गई तो ये सैम्पलिंग एरर्स कराते हैं. ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ डिफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक, फॉर एग्जांपल आपने सैम्पलिंग टेक्निक, फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक लगानी थी, लेकिन उसकी जगह में आपने कोई और दूसरी यूज कर ली, राइट? सो गलत हो गया, पर्पसिव कर ली ऐसी जगह में जहां सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए थी. सो देयर आर डिफरेंट डू एंड डोंट्स while selecting your sample, while deciding your sampling technique. So if your sampling technique is wrong, so obviously the data generated will be wrong and errors will be very high. Due to faulty demarcation of sampling units generally at the border areas, for example in villages, आप अगर डिफाइन कर रहे हो अपनी पॉपुलेशन को और बॉर्डर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, डिफरेंट तालुकास के, सो वहाँ पर अगर डिमार्केशन गलत तरीके से कर दिया तो आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का डेटा का एरर्स आ सकता है. ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ए कन्वीनियंट मेंबर ऑफ पॉपुलेशन व्हेन डिफिकल्टीज अराइजेज इन टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिलेक्टेड मेंबर इन द सैंपल, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे मेंबर ऑफ पॉपुलेशन का डेटा ले लिया जो नहीं चाहिए था, that was not intended, and you have taken the data which was not actually needed, so that will also become a problem. So due to the wrong choice of the statistic, the estimator and the test statistic, so when you are selecting a method of sampling, it's very important to decide correct method of sampling, then only your error will be reduced. So ये देखिए बहुत important point है, non sampling errors increases as the size increases. If the sample size increase होगा तो यानी आपकी non sampling errors बढ़ेंगी, और sampling size जब increase होगा तो सैम्पलिंग एरर आपकी डिक्रीज होगी. यानी जितना ज़्यादा हमारा सैंपल का साइज होगा हमारी सैम्पलिंग एरर्स उतनी कम होंगी, ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग एरर्स बढ़ने का उतना ज़्यादा चांस होगा. तो इसीलिए हमारी सैम्पलिंग एरर को घटाने के लिए हम सैंपल साइज लार्ज लेते हैं. इसलिए कहते हैं कि एक बड़े सैंपल का डेटा लीजिए, सो दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो एंड सैम्पलिंग एरर विल डिक्रीज ऑल्सो. ठीक है, तो ये देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर्स इन सेंसस जनरली, ठीक है, आर मोर देन द नॉन सैम्पलिंग एरर्स एंड सैम्पलिंग एरर्स सैंपल सर्वे. तो देखिए दोनों तरीके से हमारा सैम्पलिंग टेक्निक इज फार बेटर देन द सेंसस टेक्निक. तो देखिए नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स इस एरर, जो नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाते हैं हमारे सैंपल सेंसस में, ठीक है, जो आपके डेटा कलेक्ट करने के तरीके में गलतियां हो जाती हैं सेंसस में, वो आपके सैंपल के नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर दोनों को मिला के ज़्यादा पाई गई हैं. So it always better to go for sampling. So non-sampling errors in census are more than non-sampling errors and sampling errors combined in case of sample. So it is always better to go for a sample rather than the census method. तो इसलिए हम sampling करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गुड एस्टिमेटर मैंने आपको बताया था, एस्टिमेटर को इसका बताता है पैरामीट्रिक पॉपुलेशन का बताता है फंक्शन, एंड एस्टिमेटर इज द फंक्शन ऑफ द सैंपल. सो गुड एस्टिमेटर के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए? प्रोफेसर आर ए फिशर ने क्या क्या बताया? इट शुड बी अनबायस्ड, it should be efficient, it should be consistent and it should be sufficient. So unbiasedness, efficiency, consistency and sufficiency, these are the four important good property of a estimator. ठीक है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. सैम्पलिंग वेरिएंस देख लीजिए, द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर is known as sampling variance. Standard deviation of the estimator is known as standard error and this is the formula. आप नोट कर सकते हैं, ये बुक्स में भी अच्छे से दिया गया है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं. प्रिसीजन देखिए, प्रिसीजन हमारा डिफाइन होता है 1 अपॉन वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर. सो प्रिसीजन विल बी इंक्रीज्ड एज वी इंक्रीज द सैंपल साइज. सिंपल सा फंडा यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूले से क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है कि आपका प्रिसीजन यानी एरर्स कम होंगी, यानी प्रिसीजन बढ़ेगा. यू विल हैव मोर प्रिसीजन इफ यू इंक्रीज द सैंपल साइज ऑफ योर रिसर्च. दैट्स व्हाई गुड रिसर्च पेपर आर पब्लिश्ड व्हेन योर सैंपल साइज इज मोर. ठीक है, एंड डिक्रीजेस एज स्क्वायर, दैट इज डिक्रीज वेरिएंस. फॉर दिस वी डू ब्लॉकिंग. सो जितना कम वेरिएंस होगा, डिक्रीज द वेरिएंस. फॉर दिस वी डू ब्लॉकिंग बाय मेकिंग होमोजेनिटी इन अ पर्टिकुलर पोर्शन. उतना अच्छा आपकी प्रिसीजन पड़ेगी. तो ये आप समझ लीजिए कि सैंपल साइज जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रिसीजन आपका बढ़ता चला जाएगा.
ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसको आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में अब आ गए हैं कि अब हमारे सैम्पलिंग मेथड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड. सो देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड. द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, सेकेंड वन इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. जब भी एग्जाम में आए तो ये दो कैटेगरी ब्रॉड है, इनके अंदर सब कैटेगरीज हैं. So there are two important categories of sampling method: probability sampling methods, non-probability sampling method. अब probability sampling method, let's look one by one. The first one is the probability sampling method. ठीक है, the probability sampling method is that method where each element in the population must have an equal chance of being included in the sample. It means, इसको ऐसे कह सकते हैं आप, probability sampling method is a method where each and every unit of the population has certain probability to be included into the sample. ठीक है, यानी 250 farmers are in a village, इट्स माई पॉपुलेशन. तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड अगर मैं यूज करूंगा तो ऐसा होगा कि दीज 250 ईच एंड एवरी फार्मर इन दीज 250 हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू बी इंक्लूडेड, यानी हर किसी के पास एक चांस रहेगा इंक्लूड होने का. ठीक है, द साइज ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन मस्ट बी नोन टू द इन्वेस्टिगेटर. यानी मुझे पॉपुलेशन का साइज पता होगा, यानी मुझे पता होगा कैपिटल एन मेरे पॉपुलेशन में कितना है, 250 फॉर एग्जांपल, 250 फार्मर्स इन अ विलेज आर देयर, सो माय कैपिटल एन इज नोन टू मी. ये किसका प्रॉपर्टी होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का. सो 250 मुझे पता होगा. आफ्टर दिस 250 आई हैव टू सिलेक्ट 50. सो 50 जब मैं सिलेक्ट करूंगा, सो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ 250 फार्मर्स हैज सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू बी इंक्लूडेड इनटू 50 नंबर. सबको चांस होगा इंक्लूड होने का. तो ऐसी मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसमें हर यूनिट के पास एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो सैंपल में सम्मिलित होने की. तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड. इट इज ऑब्टेन सैंपल एज रिप्रेजेंटेटिव, जनरलाइजेशन कैन बी मेड. ठीक है, सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉपुलेशन के, बिकॉज सबके पास प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑफ 3 टाइप, एक के बाद एक देखेंगे. सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग. सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग आर द एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स. तो नाउ लेट अस लुक वन बाय वन. ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग. लेट्स स्टार्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग. एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज रैंडम एंड इट इज सिंपल. ठीक है, सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज द सैंपलिंग इन विच ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. ठीक है, 250 farmers are there in my population. My capital N is equal to 250. My sample small n is equal to 50. So out of these 250 farmers, I have to select 50 farmers. So if I do simple random sampling, it means all the 250 farmers has equal chance to be included into 50 sample size. हर एक व्यक्ति, पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति, हर एक यूनिट का सैंपल में सम्मिलित होने की चांस, उसका आप कह सकते हैं जो चांस है इन्वॉल्व होने का सैंपल में, वो बराबर होगा, इक्वल होगा. यानी फेयर है, बिल्कुल हर किसी का चांस है सैंपल में इंक्लूड होने का. सो इफ each element in the population has equal and independent chance of being selected, it is known as simple random sampling. It is bias free, बिल्कुल बायस फ्री है. ठीक है, बायस फ्री होगा क्योंकि किसी का भी नाम आ सकता है, आप कोई बायसनेस नहीं है, कोई भी सम्मिलित हो सकता है. एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस, सो इट विल रिप्रेजेंट योर पॉपुलेशन in a good way. It is also known as unrestricted random sampling. Disadvantage है इसका, do not ensure that element which exist in a small proportion. For example, in 250 farmers in my village, if suppose only 5 farmers are marginal farmers, ठीक है, rest 245 farmers are suppose medium farmers. ठीक है, ऐसा हो सकता है simple random sampling. It might happen that these 5 small and marginal farmers are not included in random chance. तो मेरा क्या होगा, मेरा पॉपुलेशन क्या होगा, मेरे सैंपल क्या होगा, इन माई सैंपल नो फार्मर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का मुझे डेटा नहीं मिलेगा, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिवनेस थोड़ा सा कम हो गया पॉपुलेशन का. ठीक है, यानी लो पॉपुलेशन अगर किसी सेगमेंट का है एक पोर्शन में, तो क्या होगा,
वो अगर छूट गया रैंडम सैम्पलिंग में तो वो पार्ट छूट सकता है, ये इंश्योर नहीं करता। ठीक है, इट प्योरली लक कि आप आ गए सैंपल में या नहीं। ठीक है, बट इक्वल चांस रहेगा सबका, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और बुक से देखिए कैसे है लिखा है, वहां से भी मैं नोट्स पढ़ा देता हूं आपको। रैंडम सैम्पलिंग, सो रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग इन विच सैंपल्स आर ड्रॉन इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन है प्री डिटरमाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी होगी। पर्पजिव सैम्पलिंग भी आपने पढ़ा होगा, एंड इन मोस्ट ऑफ द रिसर्च हम जनरली पर्पजिव सैम्पलिंग भी करते हैं मेनी टाइम्स। सो पर्पजिव सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग इन विच सैंपल्स आर सेलेक्टेड बाय अ नॉन रैंडम प्रोसेस, पर्पजिव, नॉन रैंडम और जजमेंट सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ पेशेंट, एक ऐसे पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं जिसका सर्टेन डिसऑर्डर है, तो आपको पर्पजिव सैंपलिंग करनी पड़ेगी, उस तरह के ही डिसऑर्डर वाले सैंपल को रखना पड़ेगा। ठीक है, या एक ऐसे फार्मर्स का केस स्टडी कर रहे हैं, दोज हु हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर अर्निंग मोर देन सपोज 10 लाख रुपीज पर एनम, तो आप पर्पजिव करेंगे एक एरिया के लिए, तो वही फार्मर सेलेक्ट करेंगे जिनका 10 लाख रुपीज से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप से बेनिफिट हुआ है, बिकॉज दैट इज योर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, दैट इन दैट केस यू आर डूइंग पर्पजिव सैम्पलिंग। सो पर्पजिव सैम्पलिंग भी करते हैं, लेकिन इन रेयर इवेंट्स, इन केस स्टडीज और इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी सेटिंग्स में करते हैं और कम करते हैं। ठीक है, सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको समझ में आ गई। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी यूनिट हैज द इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इनटू द सैंपल। तो आप इसको सिंपल रैंडम करते कैसे हैं, देखो ड्राइंग के क्या क्या तरीके हैं, इतना डीप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज द लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होता है, वी हैव एनकाउंटर्स, कार्ड्स होते हैं, तो सब में सांप का कार्ड का नंबर डाल देंगे, 1 to n डाल देंगे और कार्ड को ड्रॉ कर देंगे जितना आपको सैंपल चाहिए। तो जिसका इक्वल शेप, साइज, कलर के कार्ड होने चाहिए, और कार्ड को शफल कर देंगे, और कार्ड को शफल करने के बाद सपोज 50 सैंपल निकालने तो 50 कार्ड ड्रॉ कर देंगे, जिसका भी नंबर आएगा वो यूनिट को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऑल काउंटर शुड बी सेम साइज, सेम कलर होने चाहिए। इफ पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज देन द प्रोसेस इज वेरी टीडियस। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैन नॉट बी डन। अगर पूरी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे करोगे, बिकॉज इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यू नीड द नंबर ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सारा पॉपुलेशन का साइज आपको चाहिए। सो बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना भी कठिन हो जाता है, राइट। यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स आर ऑल्सो दियर। तो आपके पास जो बुक्स हैं स्टैटिस्टिक की, उनके बैक साइड में देखेंगे रैंडम नंबर टेबल्स होते हैं। सो रैंडम नंबर टेबल्स को भी यूज करके आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स लाइक टिपेट्स टेबल, फिशर एंड येट्स टेबल, कैंडल एंड स्मिथ टेबल, रैंड कॉर्पोरेशन टेबल, राव, मित्रा एंड मैथई टेबल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रैंडम नंबर टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ड्रॉ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अभी आपको फंडामेंटल समझ लेना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें हर एक यूनिट का इक्वल चांस रहता है। स्मॉल सेगमेंट रहेगा पॉपुलेशन में, उसका रिप्रेजेंटेशन करना भी इंश्योर नहीं होता, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एक तो बायसनेस नहीं होगी और रिप्रेजेंटेटिवनेस के चांसेस हाई रहेंगे, राइट। ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये देखिए दूसरी बुक से ये नोट्स हैं, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन होमोजीनियस है, आपकी बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन रहेगी तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज हर यूनिट रिप्रेजेंट नहीं होगा। होमोजीनियस अगर पॉपुलेशन तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि एक ही जैसी पॉपुलेशन है तो आप हर किसी को इक्वल चांस देंगे तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो आवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग n यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N यूनिट्स व्हिच गिव्स इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, दैट इज 1/n। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे। नाउ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने जिस यूनिट को ड्रॉ कर लिया उसको फिर आपने पॉपुलेशन जहां से आप ड्रॉ कर रहे हो उससे अलग रख लिया, हटा लिया, उसको दोबारा सम्मिलित नहीं किया। यानी 250 यूनिट में से मैंने एक फार्मर सेलेक्ट कर लिया, वो सिलेक्ट हो गया मेरा सैंपल में, तो उस फार्मर को दोबारा मैंने कंसिडर नहीं किया, उस फार्मर को मैंने अलग कर लिया। इट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन अ सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच द यूनिट सेलेक्टेड at any draw is not replaced to the population before the subsequent draw. For example, a deck of 52 cards, if you are doing a simple random sampling without replacement, so if you have drawn a card, एक particular card आ गया तो आपने उसको नोट कर लिया और उसको अलग रख लिया। सो नाउ योर टोटल नंबर ऑफ साइज इज रिड्यूस टू 51। फिर दूसरा कार्ड निकाल लिया, अलग रख लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस टू 50। एक कार्ड निकाल लिया, अलग रख लिया, टोटल साइज रिड्यूस टू 49, उसमें से निकाल लिया। सो आप देखेंगे तो आपका पॉपुलेशन का यूनिट घटता चला जाएगा, क्योंकि जो जो सैंपल आप यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको अलग करते जा रहे हैं, उसको दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, दोबारा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देख लीजिए, यहां पर लिखा है इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट सैंपल विल बी इक्वल टू कैपिटल N C N। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल के तहत मैंने
यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर थे हमारे जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तहत हमें समझा दिया कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट इज विद रिप्लेसमेंट मींस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड हैज बीन ड्रॉन, लेकिन उस कार्ड को मैंने फिर 52 कार्ड में शामिल कर लिया, तो 52 काउंट मेरा पॉपुलेशन का बना रहेगा। ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे। तो सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच यूनिट सेलेक्टेड एट एनी ड्रॉ इज रिप्लेस टू द पॉपुलेशन बिफोर द सब्सिक्वेंट ड्रॉ, दूसरे ड्रॉ निकालने से पहले सेलेक्टेड को फिर से हम पॉपुलेशन में शामिल कर देंगे। इन दिस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज सैंपल्स कैन बी n की पावर स्मॉल n। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं। और दोनों के केसेस में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट विल बी 1/n इन बोथ केसेस। 1/N will be the probability of each and every element in a population. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं वाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये याद रखिए कि पहली बात तो यहाँ से आज पता चली हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, बिकॉज वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज स्मॉलर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी इसका वेरिएंस कम होगा। ठीक है, ऐसी मेथड में। सेकंड, इफ यू रिपीटली सेलेक्ट सिंगल पर्टिकुलर यूनिट अगेन एंड अगेन देन वी हैव द सेम इन्फॉर्मेशन, यानी आपने एक यूनिट निकाली, सैंपल में सेलेक्ट की, दोबारा रख दी, तो हो सकता है किसी नंबर nth नंबर में जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर से आ जाए, तो आपका रिपीटेशन होगा डेटा का एक्चुअली। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन में नॉट अकर, दिस इज द डीमेरिट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफ योर डेटा, इफ योर पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, थोड़ी हेट्रोजेनिटी है, तो हर इस सेक्टर से आपका रिप्रेजेंटेशन होना कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मॉड्यूल में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और उससे आगे को डिस्कस करेंगे। आज के यूनिट में इतना ही। आई होप आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ तक जितना हमने आज किया इतना आपको समझ आ गया होगा। आप नोट्स बना सकते हैं, बुक का पढ़ सकते हैं, इस मॉड्यूल को देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन की तरह ये मॉड्यूल कार्य कर सकता है और मेरे नोट्स को पॉज करके अपने नोट्स जनरेट कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल में ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और इनरिचिंग मोटिवेटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।